today we have with us Supreet and Prashant. Hello. And they are from home. And we all know how they work. So tell us something about yourself. Okay. So basically, I'm just a normal guy, normal daily boy. And a few years ago, I was sitting on my screen when I was in college. So I just thought of something and we created a page. It was around 2008. So we just created the page out of randomness, and now you can see where we are. So basically I work in an IT company, Infosys Limited, and I'm working as a software engineer there, and I have total of 4 years of experience. So that is it about me. Thanks, Supreet. I guess there were 2 failed attempts, while making Haw, and finally we made this one in July 2011, and since then we are continuously using this page. And I guess PB only made the page, and I joined it in I guess December 2011. I used to be a regular member, but I used to come in rigorously and making comments on everything, every content. So that's how I joined. I've been working in the same IT industry for over 4 years now. That's good. And the main thing which I liked about this page is that it covers everything. It covers politics, it covers very basic issues like day-to-day life. And how do you see that? Okay. Is that come naturally to you, or it is a motive that you want to achieve something like that? Oh, there's nothing such thing like achieving anything. We never created it as a source of business, or we'll be making money out of it. So we post anything that is related to our day-to-day life. So if I like something and I can relate myself to the content, I'll just copy it and paste it on the page. And over the time span of these 4 years, we have created a good audience, which can relate to our personal tone. And sometimes we make post from our daily lives as well. So we post whatever we think is funny, or will be related by a normal middle class guy. So we post whatever we like. It gains sometimes we get negative responses as well. Okay, Supreet, when you see your post and जितना भी हम पढ़ते हैं उससे ये बात लगता है कि आपके जो पोस्ट हैं, जो हमारी सोच है और जो पढ़ने वालों की सोच है, मैच तो करती है, बट रिलेटेबल कैसे बनाते हैं आप कंटेंट को, और साथ में हमें लगता है कि आपके लिए शायद हमारे से डिफरेंट है, तभी ना इंटरेस्टिंग जो आता है आउटपुट बाहर। इंटरेस्टिंग तो सबकी लाइफ ही है, बट थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कंटेंट जो अब मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो अगर कुछ कंटेंट ऐसा है जो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अपने पास से, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि यार ये चीज़ पेज पे डालकर देखता हूँ। तो एक बार आप ट्राई करते हो, आप 2 बार ट्राई करते हो, आपको पता चल जाता है कि आपकी ट्यूनिंग मैच कर रही है नहीं कर रही ऑडियंस से। सो उस हिसाब से हम कंटेंट पोस्ट कर देते हैं। इसके अलावा लोग इनबॉक्स में आते हैं, हम वहाँ से कंटेंट उनसे बात करते हैं। कई बार वही हमें इतना कुछ सीखने को मिल जाता है कि हम वहाँ से पोस्ट बना के कर देते हैं। लोगों के कमेंट्स होते हैं, हम वो फॉलो करते हैं। लोग पेज की वॉल पे भी पोस्ट करते हैं, तो हम वहाँ से भी कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो जैसा भी जो भी चीज़ लगती है कि हाँ ये कोई भी एक नॉर्मल डेली गाय या कहीं का भी बंदा रिलेट कर सकता है, हम वो पोस्ट कर देते हैं। ऑल्सो ये जो आपने कंटेंट आप डालते हैं उससे बहुत सारा हिट कंटेंट भी आता है उसके साथ साथ, और बहुत सारा अच्छा एक एप्रिशिएशन मिलता है आपको, और इसके साथ साथ आपके घर वाले कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके जो पढ़ते हैं वो सबको। मैं आपकी वीडियो देख रहा था अभी रिसेंट में, यूट्यूब पे आपका वीडियो है, तो उसमें हमने क्लियरली बता रखा है कि घर वाले कैसे रिएक्ट करते हैं किसी भी नॉर्मल सी चीज़ के लिए। वो कोई भी आई गेस कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी, उसके पेरेंट्स ऐसे रिएक्ट करेंगे कि इंजीनियर बन जाओ। और आई गेस वो एक डायलॉग भी मैंने उस वीडियो में बोला था कि घर वाले कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने सारी उम्र इज्जत कमाई है, तो इज्जत कमाना क्या है जब पैसे ही ना हो जेब में। तो मिडिल क्लास फैमिली आई गेस हर किसी की लाइफ में, अगर कोई अभी भी मिडिल क्लास नहीं भी है तो वो इस फेज से ज़रूर निकला है। तो बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है कि वो रिलेट कर सकते हैं। अब फैमिली है, मेरे फैमिली में सबको पता है कि हाँ ऐसे एक हॉ पेज है और ये है एडमिन है, बट उनको समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब। कंटेंट आपको पढ़ेगा या आप इंटेंशन चाहते हैं कि ना पढ़े या फिर ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, बट मेरी फैमिली से कोई फेसबुक पे है भी नहीं इतना। अच्छा। तो जितने लोग हैं उन्होंने कंटेंट पढ़ते भी हैं तो वो कभी बोलते नहीं हैं, वो रिस्क नहीं लेते इस चीज़ का कि मेरे सामने बोल के पंगा लें, तो नहीं बोलते, मैं नहीं डिस्कस करता।
बट हाँ, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड मेरे व्यूज़ हैं, मैं घर पे ज़रूर शेयर करता हूँ। उसके अलावा हम लोग जैसे LGBT हो गया, लेस्बियन, गेज, ट्रांससेक्सुअल, बाइसेक्सुअल्स, इसके बारे में मैं घर पे ज़रूर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली अभी भी थोड़ी सी वैसी है। उनको लगता है कि ये सब बेकार है और भगवान ने ऐसा बनाया है, भगवान ने वैसा बनाया है। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको भी टाइम टू टाइम अपडेट किया जाए, और मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ। And the other two, SB and TH. What about them? ये सब टीम में कैसे ऐड हुए और ये सब कैसे लोग हैं, हम जानना चाहेंगे। ओके, सो तौकीर को मुझे याद है, देयर वाज दिस वन टाइम आई वांटेड अ कवर पिक्चर फॉर माय पेज, सो ही इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर. So he sent me one beautiful edited pic in my inbox, pages inbox. So I looked at the pic and I found it very good, and I posted it. I made that picture as a cover pic of my page. उसके बाद it became a habit, and Togir used to send me the pictures every week, and I used to update those pictures as my cover pic. तो धीरे धीरे करके वी इंटरेक्टेड मोर एंड मोर, और उससे हमारी काफ़ी बात होने लग गई. फिर वी शेयर्ड आवर थॉट्स, और ही यूज्ड टू बी अ बिग फैन ऑफ आवर पेज, सुप्रीत एंड माइन पेज. सो उसके बाद धीरे धीरे वी डिसाइडेड, सुप्रीत एंड आई डिसाइडेड कि एक दिन मतलब तौकीर को बनाते हैं. आई थिंक ही इज़ द राइट गाय, वी कैन मेक हिम एन एडमिन एंड वी कैन कंटिन्यू. तो एक दिन ऐसे ही रैंडमली वी मेड हिम एन एडमिन और ही बिकेम वन. एक और रीजन भी था TH को एडमिन बनाने का. इसका पोस्ट, PB के पोस्ट ज़्यादातर फूड रिलेटेड होते थे, तो काफ़ी फेमस हो गया कि PB फूड ही है, बहुत खाने का उसको बहुत है वो है. और मेरे वो एथीस्ट और फेमिनिज्म, विस्की, इन सब चीज़ों में थोड़े ज़्यादा रहते हैं. रिलेशनशिप्स तो मेरे थोड़े टेढ़े जवाब होते हैं. मेरे पास कोई पहले अप्रोच करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीधा कहता हूँ ब्रेकअप कर ले. और TH में डिफरेंट था. TH वो वैसा लड़के नहीं होते जिसको कहते हैं हर लड़की कहती है यार ऐसा लड़का चाहिए. ही इज अ चॉकलेट बॉय ऑफ आवर पेज का. तो TH के पीछे वो इमेज थी. SB सुश्री को तो हम लोग पेज से ही जानते थे, और उसका कंटेंट बहुत डिफरेंट है जो वो अपनी टाइमलाइन पे शेयर करती थी. तो फ्रेंड बहुत अच्छी थी, उस पर ट्रस्ट था, और उसके साथ डिस्कस करके उसको भी एडमिन बना दिया. प्लस 3 मेल एडमिन थे, तो एक फीमेल एडमिन चाहिए थी. तो पेज के लिए भी नया था, पेज की ऑडियंस के लिए भी नया था, तो वो ट्राई करना बहुत ज़रूरी था. वो ट्राई किया, वो बहुत सक्सेसफुल रहा, वो भी एडमिन है. ओके, एंड आफ्टर दैट टॉपिक्स यू कवर, कोई रेंज नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है आपकी, या फिर बाउंड्री है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाउंड्री है आपकी, हाँ इससे आगे आप नहीं बढ़ते, या फिर इस टॉपिक पे भी बात नहीं करना चाहते? मैं ऐसा कभी भी नहीं होता. 1-2 बार ऐसा ऐसा हुआ था कि मुंबई में कौन किसकी डेथ हुई थी, राज ठाकरे की, बाल ठाकरे, किसी की बाल ठाकरे बहुत इशू हुआ था कि आप पोस्ट नहीं कर सकते और ये है वो है. और हमने डाले थे 5-6 पोस्ट डाले थे, और उसके अगेंस्ट डाले थे कि फाइनली अब वैलेंटाइंस डे लोग मना सकते हैं और ये हो सकता है. तो लिटरली 5 मिनट के अंदर हमारे इनबॉक्स भर गया था गालियों से. इतने थ्रेड्स, मतलब लिटरली मैंने कभी देखा नहीं था कि मुझे इतना हेटेड कहीं से मिला. तो हमने आगे सो पोस्ट भी 1-2 डिलीट किए थे उस टाइम. तो पॉलिटिक्स वो कवर नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है, बट अब कोई इतना ही रिलीजियस हो जाए नहीं. एक्चुअली द इशू इज हम कोशिश करते हैं कि वी वांट टू मेक पीपल हैप्पी. वी डोंट वांट पीपल टू हेट अस और हेट समबडी एल्स. सो हमें जो ह्यूमरस लगता है ज़रूरी नहीं है किसी और को भी लगे. तो इसीलिए दैट इज़ आवर बाउंड्री कि इफ़ वी आर मेकिंग समवन अनकंफर्टेबल, दैट इज़ आवर बाउंड्री, वी स्टॉप देयर. सो दैट इज़ आवर मेन एम. कुछ लोगों के साथ कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, जैसे 16 का या 17 ईयर ओल्ड हमारे पास इनबॉक्स में आ जाए अपनी लव स्टोरी लेकर, और उनको क्या सजेशन है? उनको सजेशन नहीं दिया जा सकता, उनको सिर्फ समझाया जा सकता है कि या तो ये कर लो या वो कर लो, आगे मर्जी. तो उनके साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है थोड़ा बहुत. ठीक है, मैं कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस के लिए तो जा नहीं रहा, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसी से बनाऊँ या किसी से बिगाड़ लूँ. तो वहाँ और ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई पैसा दे रहा है पोस्ट करने के लिए, ऐसा भी नहीं है. तो जो मन करता है हम पोस्ट करते हैं, जैसा ठीक लगता है हम वैसा कंटेंट पोस्ट करते हैं. बहुत सारे लोग आए, अभी भी हैं, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग नए फिर और ज्वाइन हो जाते हैं. तो उससे हमारे लाइक्स पे या हमारी रीच पे या हमारी पर्सनल लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो फैंस के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है बेसिकली? क्योंकि
खो के साथ बेसिक इंटरेक्शन यूथ के साथ ही होता है, और इस एज में जो यूथ होता है काफ़ी डिफरेंट वैरायटी का होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो फनी इंस्टेंसेस जो आपको लगे और किसी फ़ैन ने आपको ऐसा कुछ बताया हो अपने बारे में, और ऐसा कुछ इंस्टेंस हुआ हो, कभी मिले हो आपको कहीं पर, आप बहुत से हो, ऐसा कुछ? एक बार हुआ था, मैं सीपी में था, क्रॉप प्लेस, और किसी फ्रेंड के साथ था, और वहाँ पे एक लड़का था, मेरे को मैंने ऐसे ही नॉर्मल आई कॉन्टैक्ट हुआ, तो सेकंड टाइम जब मैंने उसको देखा, फिर मुझे देख रहा था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ यार कहीं ये जानता ना हो। तो मेरा जो सबसे पहला डर होता है वो ये होता है कि कोई ऐसा आदमी ना हो जिसका स्क्रीनशॉट मैंने पेज पे डाल दिया हो, जिसका मैंने मजाक उड़ाया है, बेइज्जती की हो, वो डर लगता है अभी फाइट हो जाएगी। तो एक बार उसने देखा, दोबारा मुझे देख रहा था, और फाइनली वो चला गया। वो गया, वो पीछे से उसने बैक पे हाथ किया, तो पूछता सुप्रीत, मैंने कहा हाँ। तो लकीली वो अच्छे वालों में से था, अगर बुरा वालों में से होता तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता। तो एक एक्सपीरियंस था, और भी एक्सपीरियंस आई गेस ये थोड़ा सा फनी था, मैं थोड़ा सा स्केर्ड था बट नहीं था। और आप? मेरे साथ एक बार बहुत ही फ़नी इंसिडेंस हुआ। मैं मेरा ऑफिस पटेल चौक पे था, तो वहीं पे ही मैं और मेरा फ्रेंड खड़े हुए थे, हम चाय पी रहे थे। तो अचानक से पीछे से एक बंदा आया, उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, उसने अपना नाम बोला, तो फिर उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, तो मैंने भी ऐसे ही कांपते हुए हाथ खिला के उससे हाथ मिलाया। फिर मैंने कहा यार कांप क्यों रहा है? तो फिर उसने बताया कि ही इज़ अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ आवर पेज, और फिर उसके साथ फ़ोटो वगैरह ली। तो ऐसे एक दो बार होता है, कोई बंदा ऐसे आपको मिलता है और अचानक से आपको रिकॉग्नाइज करता है, तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। And also the main motive behind this interview is like connecting independent people who are doing good in the business, in the entertainment business. तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है, क्या कन्वे आप करना चाहते हैं एज अ पेज, एज अ पर्सन, क्या कन्वे करना चाहते हैं? कुछ भी आप जो कन्वे करना चाहते हैं। मेरा एक मिसकंसेप्शन है कि जो लोगों को है हमारे बारे में कि शायद हम थोड़े से सेलिब्रिटी टाइप्स हैं, या हम लोगों का बहुत नेचर ऐसा होगा या वैसा होगा। पोस्ट देख के जज मत करो, पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमारी पर्सनल लाइफ का आप हमारा एटीट्यूड जज करो। तो जो भी चीज़ फ़नी लगे उसको फ़नी वे में लो। जो कंटेंट पसंद आता है आप उसको लाइक करो, जो कंटेंट नहीं पसंद आता आप इग्नोर करो। अगर आप हर चीज़ पर रिफ्यूट करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते इस सोसाइटी में। तो जितना हो सके उतना फ़न करो, जितना हो सके उतना मजाक उड़ाओ, जितना ह्यूमर हो, सरकाज़म हो, वो सब एक्सप्लोर करो। हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी बहुत ज़रूरी है। और कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आती तो उसको डायरेक्ट हेट करने से बेटर है उसको क्वेश्चन कर लो, अपने मॉरल्स को क्वेश्चन कर लो कि क्या मैं सही हूँ इसको हेट करता हूँ। ना आप में प्रॉब्लम होगी ना हम में भी प्रॉब्लम होगी, और हम भी बिल्कुल आप जैसे लोगों की तरह एकदम हम यहीं सड़कों में घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं सड़कों वाला खाना। तो कोई हम सब सिमिलर है, एक जैसे। Okay, so 17 is an online platform where we promote artists and technology, science and anything that is relevant. So your take on that? Okay, so when you guys approached us, so Supreet told me about the thing you are trying to do. So I had the chance to look at your website, and you guys are doing very different kinds of things. So I found some articles very promising and interesting, and I shared couple of them also. So I think the site is very great. For starters, it is very good. I found it very nice. So I would suggest everyone to follow the website and your Facebook page also, facebook.com/17thmag. So yeah. Thank you. And Supreet, And all the best to this 17th for the startup, and so you can subscribe them on Facebook, YouTube, Twitter and Instagram, and do follow our page as well. And all the best for 17th. All the best. thanks. हाँ भाई, कौन बोलेगा? स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया? आर यू श्योर? मैं बोलता तो तू बोल रहा है ना? 17th, सॉरी कहाँ है, ये रहा 17th। और बहुत अच्छा स्टार्टअप है, बहुत प्रोफेशनलिज्म है इनमें, और बहुत अच्छे से इनका कंटेंट भी शेयर हो रहा है फेसबुक पे,
ट्विटर पे, और बहुत जल्दी ये लोग यूट्यूब सीरीज भी रिलीज करने वाले हैं जो इन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है। तो सब्सक्राइब 7tent, इट इज स्पेल्ड एज 7TINT 7tent, सब्सक्राइब करें। और इनका बजट कम था तो कॉफी नहीं है साले, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है हमारे पास, हमें सिर्फ मग दिए गए हैं ताकि हम प्रमोशन कर सकें। तो 7tent लाइक करना है, हॉ फॉलो करना है, और बाकी का वीडियो आपको ये लोग दिखा देंगे। थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।